السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کیا صبر ایک سپر پاور ہے اور صبر سپر پاور کیوں ہے، اور صبر کرنے کے فائدے اور بے صبری کے نقصان۔ تو اگزامپل کے لیے لیجئے، اگر کوئی آپ کو غلطی سے برا بھلا کہہ دے جس سے آپ کو امید نہ تھی، ایسا انسان آپ سے برا بھلا کہہ دے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ غصہ، فرسٹریشن یا چیخنا؟ ہم سب کی زندگی میں روز ایسے موقع آتے ہیں جب ہمارا صبر ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اکثر ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کو لگتا ہے صبر کا مطلب ہار مان لینا یا مجبوری میں چپ ہو جانا، لیکن یہ ادھورا سچ ہے۔ آج ہم بات کریں گے اصلی صبر کے بارے میں۔ اصلی صبر کیا ہے؟ یہ کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی سپر پاور ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ صبر نہ کرنے کے نقصان کیا ہے اور صبر کرنے کے فائدے کیا ہے، تو شاید آپ کا زندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ اسلام میں یا دنیا کے ہر اچھی آئیڈیالوجی میں صبر کا مطلب ویٹنگ یا انتظار کرنا نہیں ہے۔ صبر کا مطلب ہے اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ انتظار کرنا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اصل صبر وہ ہے جو صدمے کے شروعات میں کیا جائے۔ اصل صبر تو وہ ہے جو صدمے کے شروعات میں کیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کے لیے میں آپ کو آسان مثال بتاتا ہوں۔ امیجن کریں آپ کو خبر ملے کہ آپ کی جاب چلی گئی ہے، تو آپ کا ری ایکشن نمبر 1 کیسا ہوگا؟ پہلے 2 گھنٹے آپ غصہ کرتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں، میری ہی قسمت خراب ہے، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ پھر تھک ہار کر کہتے ہیں چلو اب کیا کر سکتے ہیں، صبر کر لیتا ہوں۔ یہ مثال نمبر 1 ہوئی۔ اب مثال نمبر 2 کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے ہی آپ کو خبر ملتی ہے، آپ کے دل کو جھٹکا لگتا ہے، لیکن فوراً آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ضرور اس میں کوئی بہتری ہوگی، اب مجھے سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ ہوا ری ایکشن نمبر 2، جو جھٹکے کے فوراً بعد آیا، یعنی جو جھٹکے کے فوراً بعد ری ایکشن نمبر 2 جو آیا وہ اصلی صبر ہے۔ بعد میں تو ہر کوئی مجبور ہو کر چپ چاپ ہو ہی جاتا ہے۔ اب ہم جانیں گے بے صبری کے نقصان۔ اکثر ہم سوچتے ہیں صبر نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن صبر نہ کرنے یعنی بے صبری کے بہت بڑے نقصان ہیں۔ یہ ہماری دنیا اور دین دونوں کو خراب کرتے ہیں۔ نقصان نمبر 1، جیسے آپ کے رشتے خراب ہو سکتے ہیں۔ جب ہم بے صبر ہوتے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے قریبیوں پر چلاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، ٹوٹ مارتے ہیں۔ ایگزامپل کے طور پر آپ آفس سے تھک ہار کر آئے۔ ایگزامپل کے طور پہ آپ آفس سے تھک کر آئے اور گھر میں کھانا تیار نہیں تھا۔ آپ بے صبر ہو گئے اور اپنی بیوی یا ماں پر غصہ نکال دیا۔ آپ نے 5 منٹ کے غصے میں اس انسان کا دل دکھایا جو پورا دن آپ کا خیال رکھتا ہے۔ بے صبری رشتوں میں درار ڈال دیتی ہے۔ نقصان نمبر 2، آپ کی صحت برباد ہوتی ہے۔
साइंस कहती है हर वक्त गुस्से में रहना, इम्पेशेंट रहना आपका ब्लड प्रेशर हाई करता है, ये स्ट्रेस पैदा करता है जो आपके दिल व दिमाग को पूरे जिस्म के लिए जहर है। ये स्ट्रेस पैदा करता है जो आपके दिल, दिमाग और पूरे जिस्म के लिए जहर है। आप बेसब्रे होकर अपने जिस्म को अंदर से जला रहे हैं। नुकसान नंबर 3, आप गलत फैसले करते हैं। बेसब्री में आदमी सोच नहीं पाता, वो जल्दबाजी में गलत फैसले करता है। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट ने 2 महीने पढ़ाई की और रिजल्ट अच्छा नहीं आया। वो बेसब्रा हो गया और उसने पढ़ाई ही छोड़ दी। जबकि अगर वो सब्र करता और अपनी गलतियों को देखता तो वो अगले एग्जाम में टॉप कर सकता था। उसने जल्दबाजी में अपना फ्यूचर खराब कर लिया। नुकसान नंबर 4, सबसे बड़ा नुकसान होता है, जैसा कि अब हम जानते हैं नुकसान नंबर 4 के बारे में। सबसे बड़ा नुकसान जब हम बेसब्रे होते हैं, हम अनजाने में अल्लाह से शिकायतें कर रहे होते हैं। कैसे शिकायतें करते हैं? या अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों कहना ही सब्र के खिलाफ है। हम अपने सवाब को खो देते हैं। अब हम जानेंगे सब्र करने के फायदे। तो फिर सब्र करने के फायदे क्या है? अब ये बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल आएगा कि भाई सब्र ना सब्र बेसब्री के नुकसान तो आपने बता दिए। तो अब बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल ये आएगा कि आपने बेसब्री के नुकसान तो बता दिए, अब सब्र करने के फायदे भी बता दीजिए। चलो सब्र करने के फायदे बताते हैं। फायदा नंबर 1, अल्लाह आपके साथ होगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। कुरान में अल्लाह ने साफ फरमाया, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला किसके साथ में है? सब्र करने वालों के साथ में। मिसाल के लिए सोचिए, आप एक बहुत बड़े मुश्किल में है। सोचिए आप एक बड़े मुश्किल में हैं। अगर आप पैनिक कर जाए तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर सब्र करे तो अल्लाह आपके दिल में एक सुकून, इत्मीनान डाल देता है। वो आपके दिमाग को रास्ता सुझाता है। अल्लाह का साथ होने का मतलब यही है, वो आपको मुश्किल में भी अकेला नहीं छोड़ता। फायदा नंबर 2, आपको बेहतरीन तोहफा मिलता है। सब्र वो चीज है जिसे हदीस में दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट कहा गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को भी सब्र से बेहतर यानी सब्र से बड़ा गिफ्ट नहीं अता किया गया। क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? किसी को भी सब्र से बड़ा गिफ्ट अता नहीं किया गया। और एक मिसाल से समझते हैं, जैसे पैसा, गाड़ी, घर। और एक मिसाल से समझते हैं जैसे पैसा, और एक मिसाल समझते जैसे पैसा, गाड़ी, घर। ये सब चीजें आपसे छीन सकती है, लेकिन सब्र एक ऐसा गिफ्ट है, ऐसी ताकत है जो आपके अंदर होती है। ये वो सुपर पावर है जो ये आपको हर तूफान से आपको निकाल सकती है। फायदा नंबर 3, आपको बेहिसाब अज्र मिलता है सब्र करने का। अल्लाह ताला ने हर नेकी का अज्र बताया हुआ है। कुछ नेकियों का 10 गुना अज्र है, कुछ नेकियों का 700 गुना अज्र है। सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। क्या फरमाया गया? सब्र करने वालों को उसका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा, यानी उसकी कोई लिमिट नहीं होंगी। और एक मिसाल से समझते हैं, ये ऐसा है जैसे
कंपनी का मालिक अपने सबसे अच्छे एम्प्लॉय को एक ब्लैंक चेक दे दे और कहे जितना चाहे उतना अमाउंट भर लो। सब्र वो अमाल है जिस पर अल्लाह ब्लैंक चेक देता है। फायदा नंबर 4, आपको ज़हनी सुकून मिलता है। सब्र करने से क्या होता है? आपको ज़हनी सुकून मिलता है। ये दुनियावी फायदा है। सब्र करने वाला इंसान हमेशा पुरसुकून रहता है, यानी मेंटल पीस में रहता है, काम रहता है। उसे पता है कि चीजें 100% उसके कंट्रोल में नहीं है। वो अपना बेस्ट ट्राई करता है और रिजल्ट अल्लाह पर छोड़ देता है। इससे उसकी एंजाइटी, डिप्रेशन खत्म हो जाती है। अब हम जानेंगे सब्र कैसे किया जाए। आप सोचेंगे कि ये सब कहना आसान है, बातें करना तो आसान है। आप सब ये कहेंगे, सोचेंगे, और अक्सर लोग कहते भी हैं बातें करना बहुत आसान है, लेकिन सब्र करना आसान नहीं है, नामुमकिन भी नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। तो हम 3 चीजें फॉलो करेंगे। नंबर 1, फौरन जवाब मत देना। नंबर 1, कोई भी चीज का फौरन जवाब मत देना। जब भी आपको गुस्सा आए, फौरन रुक जाने का। हदीस है, असली ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त खुद को काबू में रखे। हदीस में क्या फरमा गया? असली ताकतवर इंसान वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। एग्जाम्पल के तौर पे, किसी ने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, गलत मैसेज भेजा, फौरन टाइप करके सेंड मत करे। 10 मिनट रुक जाए, पानी पिए। आप देखेंगे 10 मिनट बाद आपका जवाब बिल्कुल अलग और ज्यादा समझदारी वाला होगा। मिसाल के तौर पर, आप अपनी पुरानी मोटरसाइकिल, बाइक से या कार से परेशान हैं और सब्र नहीं हो रहा है, तो फौरन उस इंसान को देखें जो बस पकड़ने के लिए धूप में भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है। आप फौरन अपनी नेमत का शुक्र अदा करें और आपको सब्र आ जाएगा। तो अब इस वीडियो के हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो दोस्तों, सब्र करने का मतलब हार मान लेना नहीं है या कमजोर होना नहीं है। सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा करके बेहतरीन कोशिश करना, यानी अपन जितनी कोशिश कर सकते हैं पूरी कोशिश करना, 100% अपना उसमें लगा देना। और बेसब्री से आपको सिर्फ स्ट्रेस, बीमारी और खराब रिश्ते ही मिलते हैं, जबकि सब्र से आपको अल्लाह की मदद, ज़हनी सुकून और बेहिसाब रिवार्ड मिलता है। आप सब्र को कमजोरी मत समझिए, ये मोमिन की बल्कि हर कामयाब इंसान की सबसे बड़ी सुपर पावर है। आप कमेंट में बताएं कि आपके जिंदगी का वो कौन सा मौका था जब सब्र करने से आपको बड़ा फायदा हुआ, ताकि हम सब एक दूसरे से सीखें। और आखिर में मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।